Welcome in learning maths in easy way. In this video, I am going to continue chapter number 3, data handling of class 7. So I am starting this video by bar graph. तो bar graph होते क्या है? Bar graph is a graphical representation of a data. That means जब हम अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वी विल यूज बार ग्राफ. बार ग्राफ, लेकिन ये जो होता है बार, ये होता क्या है? बार इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर शेप with equal width. मीन्स जितने भी हम बार यूज करते हैं all bars are of equal width or having equal space between them. An example of the bar graph, here some subjects are mentioned: English, Math, Science or SST, and the marks of in these subjects are 75, 60, 80, 90 respectively. So how we will draw the bar graph of this data? First we have to draw y-axis or x-axis. Like that, it is x, it is y and it is origin. On the x-axis we have to take the subject. So हमें क्या करना होता है कि एक बार छोड़कर we have to highlight the boxes. जो ग्राफ पे बॉक्सेस होते हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, वन बॉक्स को छोड़कर वी हैव टू मेक इंग्लिश का जो हमें बार बनाना है वो यहाँ पर होगा. फिर एक हम स्किप करेंगे, देन मैथ्स एक स्किप करके, अगेन इट फॉर साइंस एंड एक स्किप करके फिर से एसएसटी. ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टू टेक द मार्क्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. So on y-axis these are marks we have to write here. Marks को हम show कर रहे हैं and on the x-axis we show the subjects. Okay. So now English के लिए हमें 75 का एक बार हमें draw करना है. तो 75 approximate will be here. हमें क्या करना है? एक इस टाइप से बार बनाना है. Like that. Now we will draw the bar for maths. So maths में marks हैं 60. So we have to take it here by the scale. हम यहाँ पर point लगा सकते हैं कि on the 60 we have to make it here. And ये भी हमें scale से ही draw करना है basically. Like that. Okay, now again for the science. Science is 80. So we have to take it here. 80 के लिए हम 80 के सामने जाएंगे and we have to draw the two dots और इसको भी हमें स्केल से ही ज्वाइन करना होता है. Like that. Okay, and then for next is SST. SST के लिए we have to go for 90. तो हमें 90 पे जाना है approximate. It will be like here. And now we have to join it with scale. Okay, it for the SST. You can write here the, यहाँ भी हम लिख सकते हैं English and it is for maths. ऐसे ही हम सब्जेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं. Then we have to write here the scale. स्केल इज व्हाट? स्केल होता है जो भी हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, इट इज अ स्केल. जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पर, वन बॉक्स 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट हियर वन बॉक्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स. सो बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ एनी डेटा. हियर वी आई राइट हियर द एसएसटी. सो इट इज अ कंप्लीट बार ग्राफ. नाउ इट इज डबल बार ग्राफ. First, I want to explain the what is a double bar graph. Double bar graph में हम double bars बनाते हैं और we have to use double bar graph for comparing the two objects. जैसे यहाँ पर subjects are mentioned and there are two student A and B और उसके marks को हम compare कर रहे हैं by the graph. तो इन जब भी हम दो चीजों को compare करते हैं we will use a have to take here y-axis and it is x-axis and it is origin.
वाई एक्सिस पे वी हैव टू टेक मार्क्स 20, 30, like that, and here we have to write here the marks. On the x axis we have to mention the subjects. So subject के लिए we have to first highlight the boxes on the graph. जो हमारे ग्राफ में boxes होते हैं we have to highlight it. और first we have to draw for the English student A के लिए 75 का हमें बार बनाना है, तो we have to go from, we have to draw it by scale approximate here. हम 75 का इस तरह से बनाएंगे like that, ठीक है. एंड देन स्टूडेंट बी के लिए 60. दैट मीन्स इसमें डबल बार ग्राफ में वी हैव टू ड्रॉ फॉर वन सब्जेक्ट ऑफ ईच स्टूडेंट. अब हमें 60 के लिए बनाना है, तो वी हैव टू टेक हियर 60 के लिए हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे कि हमें कहाँ तक जाना है, और इसी बार से ज्वाइन करते हुए वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन. हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है like that and join it. It is for A, it is for B. Okay, और ये हमारे जो बार है they are for these bars are for English. Okay, now we have to skip one box and then draw the bars of maths. Maths के लिए again we have to draw for 60. तो 60 के लिए हमें यहाँ तक जाना है like that. ओके, एंड स्टूडेंट बी गॉट 70 मार्क्स. तो हमें 70 के लिए वी हैव टू 70 का हमें पॉइंट लेना है, और इसी से ज्वाइन करती हुई हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दैट. एंड ज्वाइन इट. इट इज फॉर ए, इट इज फॉर बी. सेम एज वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू स्किप अ बॉक्स, ये वाला, और इसके बाद हम इन बॉक्सेस पे साइंस के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो स्टूडेंट ए गॉट 80 मार्क्स. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक हियर, हम कैसे करेंगे, इस बॉक्स को छोड़कर 80 तक हमें अप्रोक्सीमेट जाना है. तो ये हमारा 80 का बार हो गया लाइक दैट. एंड स्टूडेंट बी गॉट 90 मार्क्स. तो वे हमें कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है. वी हैव टू टेक हियर यहाँ तक जाकर वी हैव टू ड्रॉ लाइक दैट. यू विल यूज स्केल, प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल. इट इज फॉर ए, इट इज फॉर बी, और ये हो गया साइंस. So by this way you can draw the bar graph, or then we have to write the scale. Scale is equal to, here one box is equal to 10 marks. So it is a complete double bar graph of this data. By this way you can draw double bar graph of any data. Come to the topic probability. Probability is what? Probability होती है किसी भी event के होने का chance. That is chance of happening of an event. Happening means उसका होना, कितने चांस है, और इवेंट होती है कोई भी इंसिडेंट कि उस इंसिडेंट होने के कितने चांस है. अब वो हो सकता है, लेट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉइन. कॉइन हैज two faces. One face is of hat and second one for tail. टेकिंग एन एग्जाम्पल, जैसे हमारा कॉइन होता है, इट हैज टू फेसेस, वन फॉर हैड एंड द सेकेंड वन इज टेल. सो देयर आर, ये क्या होता है कि इसमें जो होते हैं वो होते हैं टोटल इवेंट्स. कितने हैं टोटल इवेंट्स, कितने हो गए, हैड और टेल, दैट इज 2. अब हमें क्या चाहिए, जब व्हेन वी टॉस द कॉइन वी हैव टू टेक, हमें फेवरेबल इवेंट, हमें ऊपर हेड ही लेकर आना है. तो हेड कितना है, हेड इज ओनली 1. सो द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड हम किस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर कमिंग हेड इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. ओके, नाउ द फेवरेबल हमें क्या चाहिए, हेड, हेड इज 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 2. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मीन्स
when we toss a coin, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज 1/2, एंड बाय द सेम वे probability of the tail is also 1/2 because it has only 2 faces. Now I am taking another example of die. ठीक है, ये डाइस होता है. डाइस में हमारे जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं. इन 6 में से कोई भी नंबर हमारा आ सकता है when we throw the dice. ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट के क्या है 6 आए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मुझे कितना चाहिए 6. तो 6 कितना है यहाँ पे 1 टाइम. कितना है 1 टाइम. 1/, इट इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 6. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6. I am taking another example of probability. If a bag contains white balls, white are 8, red 9 balls, and I am writing here black balls 3. Okay, so my question is that कि find the probability of कि जब हम उस बैग से एक कोई भी बॉल निकालते हैं, it of black color, it for red color, and it will be of white color. That means we have to find the probability कि बॉल जब हम उसमें से बैग में से एक बॉल निकालेंगे तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो फर्स्ट वी हैव टू डू द टोटल बॉल्स. हमें क्या निकालना होता है, टोटल बॉल्स कितनी होती है, 8 + 9 + 3. ओके, 9 और 8 17 और 3 20. That means there are 20 total balls in a bag, and we need the probability of black. Probability of black balls कितनी है 3. So the answer is 3/20. Okay, same as probability of red balls. Red balls कितनी है 9. Means 9 में से कोई सी भी red ball हमारे हाथ में आ सकती है. तो it will be 9/, total balls is 20, and probability of white is 8/20. So by this way you can find out the probability of the balls, और इस तरह से आप probability के sums को भी solve कर सकते हैं. If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.